ایک صوفی سمندری سفر کر رہا تھا۔ جہاز مسافروں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ لوگ صوفی کے پاس جا کر دعائیں کرا رہے تھے، مشورے مانگ رہے تھے، نصیحتیں مانگ رہے تھے۔ لوگوں کے لیے تو صوفی ہمیشہ اسی کام کے رہے ہیں۔ تم بھی دیکھ لو اپنے ارد گرد، جھوٹے یا سچے پیر جہاں بھی بیٹھے ہیں، لوگ انہیں اسی مقصد کے لیے ہی استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی مشورہ، کوئی دعا، کوئی نصیحت، رسم ہے، اور تم رسمیں بنانے میں ایکسپرٹ ہو۔ رسم کیا ہے؟ زندہ سانپ کے گزر جانے کے بعد جو لکیر رہ جاتی ہے اس کو پیٹتے رہنا۔ تم پیروں سنتوں کے پاس سچ، حق، ریئلٹی جاننے تھوڑی جاتے ہو کہ وہ جو اندر احساس ہے کہ میں اس رستے پر نہیں چل رہا، اس احساس کو مار سکو۔ تم سچ کا سفر نہیں کرنا چاہتے، بس کسی ایسے بندے کو مل کر اس سے نصیحتیں مانگ کر اس گلٹ کو مٹاتے ہو۔ اندر سے تم کلیئر ہو، طے شدہ ہو کہ چلنی یہی راہ ہے، یہی دنیا کی راہ۔ اس میں لاکھ دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، مگر یہ دنیا پھر بھی تمہیں جانی پہچانی لگتی ہے۔ ان نون میں اترنا نہیں ہے۔ پیروں، فقیروں، صوفیوں، سنتوں کی یہ ساری فوج جو تم نے پال رکھی ہے، یہ بس تمہارے اسی جذبے کی تسلی کے لیے ہے۔ اور پیر فقیر بھی یہ جان گئے ہیں، وہ جان گئے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ موجود ہے، سپلائی فراہم کر دو، بہترین پیشہ ہے۔ تم نصیحتیں مانگنے جاتے ہو اور وہ تمہیں بے ضرر سی رٹی رٹائی نصیحتیں کر دیتے ہیں۔ دونوں کا کام چل رہا ہے۔ یہ تمہارے سارے پیر فقیر تمہاری من چاہی نصیحتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ من چاہی نصیحتیں جو تم ان سے نہ بھی سننے جاؤ تو بھی کوئی فرق نہ پڑے۔ یہ تو وہ نصیحتیں ہیں جو گلی کے ہوٹلوں تھڑوں پر بیٹھے بابے بھی تمہیں کر دیں گے۔ اس لیے یہ پیری مریدی کا کھیل جو تم نے رچا رکھا ہے، اس کو اتنا بڑا دھندا نہ مان بیٹھنا کہ جیسے اس سے تم ریئلٹی تک پہنچ ہی جاؤ گے۔ خیر، کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جہاز کا وہ صوفی مسافر مگر حقیقی صوفی تھا، لوگوں کی خواہشوں کا غلام نہیں تھا، ان کو تسلی دینے والی نصیحتیں لے کر نہیں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس جو بھی آیا اس نے اسے ایک ہی بات کہی۔ اس نے کہا، دیکھو موت آ رہی ہے، ہوش رکھنا، جب تک اسے جان نہ لینا تب تک ہوش نہ کھونا۔ یہ اب تسلی والی بات نہ تھی، مسافروں کا خون خشک کر دینے والی بات تھی۔ لوگ تو بیچارے تفریح پر نکلے تھے، زندگی کو انجوائے کرنے۔ انہیں موت کی بات کہنا یہ تو ان کی محفل پر، گرم محفل پر ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ تھا۔ لوگ وہاں سے بد دل ہو کر اٹھ گئے کہ ہم زندگی انجوائے کرنے آئے ہیں اور یہ صوفی تو موت کی منحوس خبریں بیٹھا بانٹ رہا ہے۔ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر میں ہی سمندر پاگل ہونے لگا۔ طوفانی لہریں جہاز کے تختوں کو گیلا کرنے لگیں، ہوائیں دھاڑ رہی تھیں اور لہریں آسمان کو پکڑنے کی کوشش میں پاگل ہو رہی تھیں۔ خوفناک طوفان نے جہاز کو اور اس کے مسافروں کو پریشان کر دیا۔ ایک کوہرام مچ گیا۔ وہ جو تفریح کرنے آئے تھے، وہ جو انجوائے کرنے آئے تھے اور تھوڑی دیر پہلے کہے لگا رہے تھے، اب ان کی چیخیں رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ جہاز کا کپتان ہو یا کوئی مسافر، سب سجدہ ریز دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس سارے بدحواس منظر میں مگر ایک انوکھی چیز بھی ہو رہی تھی۔ وہ صوفی جس نے موت سے ان کو ڈرایا تھا، ڈرایا کیا تھا، خبردار کیا تھا کہ ہوش میں رہنا، وہ بالکل ساکت، پرسکون، مطمئن اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ نہ خوف اس کے چہرے پر، نہ فریاد اس کے ہونٹوں پر۔ یوں بیٹھا تھا جیسے موت کی تشتری پر نہیں، کسی پارک میں بیٹھا ہو۔ کچھ دیر سلسلہ جاری رہا۔ طوفان اپنا کھیل کھیلتا رہا اور مسافروں کا تماشا اور صوفی کا سکون دیکھتا رہا۔ پھر جیسے ہر طوفان کی فطرت ہوتی ہے کہ اس کو تھمنا ہی ہوتا ہے، یہ طوفان بھی تھم گیا۔ لوگ بھی فریادوں اور دعاؤں کی دھول جھاڑ کر ہوش میں آنے لگے۔ صوفی صاحب کی محفل پھر گرم ہوئی تو لوگوں نے کہا، حضرت ہمیں تو خوف نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس خوفناک طوفان کے دوران ہمارے اور موت کے درمیان بس صرف یہ لکڑی کا ایک تختہ تھا۔ اگر یہ تختہ نہ رہتا تو ہم سب ختم تھے۔ صوفی نے کہا، میں جانتا تھا سمندر ایسے ہوتے ہیں، یہاں ہمارے اور موت کے درمیان بس ایک تختے کا آسرا ہوتا ہے، مگر جب میں خشکی پر تھا، زمین پر تھا، تب بھی تو میں نے یہی دیکھا تھا۔ وہاں بھی ہمارے اور موت کے درمیان اس تختے سے بھی کم فاصلہ ہوتا ہے، بلکہ وہاں فاصلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔
तुम अपने कब्रिस्तानों पर चल रहे होते हो। इंसान की पूरी तहजीब को, तारीख को, अपनी इस नाम निहाद तरक्की याफ्ता सोसाइटी को देखो। ये दो चीज़ों के खौफ और उनके छुपाने पर खड़ी हुई है। एक है मौत और दूसरी है शहवत। शहवत और मौत, जिंदगी का पहला सिरा शहवत है और दूसरा सिरा है मौत। और इंसान की पूरी कोशिश यही रही है कि किसी तरह इन दोनों को भुला दिया जाए, छुपा दिया जाए। इंसान ऐसे जीता है जैसे उसकी जिंदगी में न शहवत है। इंसान ऐसे जीता है जैसे उसकी जिंदगी में न शहवत की कोई हकीकत है और न मौत की कोई जगह है। मगर क्या आंखें बंद कर लेने से हकीकतें बदली हैं? नहीं, शहवत भी तुम्हारी जिंदगी को घेरे है और मौत भी तुम्हारे पीछे पड़ी है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता, अगर तुम इन दोनों को हकीकत के तौर पर कबूल कर लेते, इनका सामना करते, तो तुम जिंदगी के हतमी हक तक पहुंच जाते। मगर तुमने इन्हें छुपाने का फैसला किया, इन्हें दबाने का, और नतीजे में तुम उस अजीम तजर्बे से महरूम हो गए। कभी सोचा कि शहवत और मौत तुम क्यों छुपाते हो? पूरी इंसानी तारीख को उठाकर देखो। इन दो हकीकतों को छुपाने, दबाने, इन पर पर्दा डालने पर ही तुम्हारी सारी तहजीबों के रस्म व रिवाज खड़े मिलेंगे। शहवत और मौत दोनों जुड़े हैं। शहवत इंसानी वजूद की शाख का एक सिरा है, मौत दूसरा। दुनिया में मौत सिर्फ उसी की है जिसका जन्म शहवत से हुआ। बायोलॉजी कहती है जिंदगी की दो शक्लें हैं, एक जिनसी, एक गैर जिनसी। जिनसी जरिए से हुई जिंदगी को तुम जानते हो। दूसरी होती है एसेक्सुअल लाइफ, जैसे अमीबा की। ये एक यकखुलवी जानदार है। ये बहुत छोटा सा खुर्दबीनी जानदार होता है जो बिना किसी जिनसी अमल के बढ़ता है। इसलिए अमीबा की कोई कुदरती मौत नहीं होती। अमीबा की जिंदगी का ढंग समझो, वो सिर्फ खाता है, उसका जिस्म ही उसका सब कुछ है। जब वो खाते खाते इतना बड़ा हो जाता है कि उसका जिस्म मजीद फैल नहीं सकता, तो वो दो हिस्सों में बट जाता है। एक अमीबा टूटकर दो बन जाता है। बाप ही बेटा बन गया। पुराना जिस्म मरा नहीं, बल्कि तकसीम होकर नया हो गया। फिर वो दोनों हिस्से खाना शुरू करते हैं, बड़े होते हैं और फिर तकसीम हो जाते हैं। अमीबा को तुम मार सकते हो, जला सकते हो, कुचल सकते हो, लेकिन उस पर नेचुरल डेथ, कुदरती मौत कभी नहीं आती। वो लाखों साल से जिंदा है और शायद लाखों साल तक जिंदा रहे। मगर इंसान और बाकी जानवर ये जिनसी अमल का नतीजा है, और जो भी जिनसी अमल की तख्लीक है वो जिस्मानी लिहाज से मिटता है, वो टाइम बाउंडेड है। शहवत से शुरू होने वाला ये रास्ता तुम्हारी जिस्मानी तख्लीक की वजह तो है, मगर यही अमल तुम्हारे लिए मौत का दरवाज़ा भी खोलता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक ख़ास मिकदार में तवानाई, एक लाइफ करंट लेकर पैदा होता है। ये तवानाई 70, 80, 100 साल में ख़त्म हो जाती है। ये बैटरी चार्ज नहीं होगी, ये सिर्फ खर्च होगी। और जब ये तवानाई ख़त्म होगी, बच्चे को मरना होगा। तो ये तय है कि जो पैदा हुआ वो मरेगा। मगर अलमिया ये है कि मरना कोई नहीं चाहता, मिटना कोई नहीं चाहता। फना हो जाने का ख्याल ही इंसान को लर्जा देता है। चाहे तुम्हारी ज़िंदगी कितनी ही जहन्नम क्यों ना बनी हुई हो, चाहे तुम दुखों के पहाड़ तले ही क्यों ना दबे हो, तुम फिर भी मरना नहीं चाहते। एक भिखारी को देखो जिसके हाथ पांव गल चुके हैं, जो ताउन का मरीज है, जो नाली में कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी गुजार रहा है। अगर तुम उससे भी पूछो, वो भी मरना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी कितनी ही बुरी क्यों ना हो, इसमें एक उम्मीद बाकी रहती है कि शायद कल, आने वाले कल सब ठीक हो जाएगा। आज नाली में हूं, शायद कल महल होगा। आज बीमार हूं, कल तंदुरुस्त हो जाऊंगा। जिंदगी में कल का तसव्वुर है, मुस्तकबिल का ख्वाब है, लेकिन मौत के साथ ही कल ख़त्म हो जाता है। वक्त मिट जाता है, मुस्तकबिल की तख्ती टूट जाती है। और ये मैं बचा रहूं, ये जीने की ख्वाहिश, ये हुब्बे बका इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अमेरिका में एक शख्स को सजाए मौत सुनाई गई। जज अपनी तरफ से बहुत रहमदिल बन रहा था। उसने मुजरिम से कहा, फैसला सुनाने से पहले मैं तुम्हें एक इख्तियार देना चाहता हूँ, ताकि इंसाफ भी और रहम भी हो। मुझे बताओ, तुम एसी करंट वाली बिजली से मरना पसंद करोगे या डीसी करंट वाली? अरे नादान, जिसे मरना है उसके लिए करंट की किस्म से क्या फ़र्क पड़ता है? मौत तो मौत है, चाहे तुम महल में मरो या फुटपाथ पर, चाहे तुम बिस्तर मखमल पर मरो या कांटों पर। मिटने का खौफ तो एक जैसा ही है,
शहनशाह भी उससे कांप रहा है और फकीर भी। तुम्हारे तमाम खौफ, तुम्हारी सारी परेशानियां दरअसल इसी एक खौफ की शाखें हैं, मिट जाने का खौफ, मौत का खौफ। तुम दौलत खोने से डरते हो, क्यों? क्योंकि दौलत तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देती है, बचाती है। तुम दोस्त खोने से डरते हो, क्यों? क्योंकि अकेलापन तुम्हें मौत के करीब महसूस कराता है। जहाँ जहाँ खौफ हो वहाँ वहाँ गौर करना, उसके पीछे मौत का चेहरा छुपा मिलेगा। इंसान इतना खौफज़दा है कि वो भूल जाना चाहता है कि उसे मरना है। इसीलिए तो तुम कब्रिस्तान शहरों से बाहर बनाते हो। मौत जिंदगी के बीचों बीच खड़ी है, हर सांस के साथ वो तुमसे अपना ताल्लुक डेवलप कर रही है, मगर तुमने उसका घर बस्ती से बाहर बना रखा है। तुम वहां जाना नहीं चाहते। मजबूरी में किसी को दफनाने जाओ भी तो जल्दी जल्दी वहां से भागने की कोशिश करते हो। दिल घबराता है। क्यों? भूत प्रेत का कोई डर नहीं होता। कब्रों को देखकर तुम्हें अपनी मौत याद आती है। वो कब्रिस्तान एक आईने की तरह चीख चीख कर कह रहा होता है, आज ये है, कल तुम यहां होगे। तुम मौत को छुपाते हो। जब रस्तों से जनाजे गुजरते हैं तो माएँ बच्चों को घर के अंदर छुपा लेती हैं, दरवाजे बंद कर लेती हैं। क्यों? ताकि बच्चे को मौत का पता ना चले। क्या नादानी है। जो अटल हकीकत है उसे छुपाने से तुम्हें क्या मिलता है? और तुम कितना भी छुपाओ, मौत किसी ना किसी रोज़न से झांक ही लेगी। और जब छुपाने से काम नहीं बनता तो तुमने एक और बड़ा इंतजाम कर रखा है। तुमने रूह के अमर होने का नजरिया घड़ लिया है। रूह नहीं मरती। ये बात तुम इसलिए नहीं मानते कि तुम रूह को जानते हो या तुम्हें कोई रूहानी तजर्बा हुआ है। नहीं, तुम इसलिए ये माने बैठे हो कि अंदर से डरे हुए हो, तुम्हारा दिल कांपा हुआ है। ये नजरिया तुम्हें सहारा दे देता है, दिलासा देता है। अरे सिर्फ जिस्म ही मरेगा, मैं तो बचा रहूंगा, मैं तो हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। ये तुमने अपने खौफ को तसल्ली देने की ढाल बनाई है। ये दुआएं, ये गिड़गिड़ाना, ये सब खौफ की पैदावार हैं। और याद रखो, जो मज़हब खौफ की बुनियाद पर खड़ा हो वो तुम्हारे कोई काम ना आएगा। सच्चा मज़हब बस वही जो तुम्हें हर खौफ से पार ला खड़ा करे। जिसने निडर होकर मौत की आंखों में आंखें डाल कर देखा, उसने पाया कि मौत के पीछे ही असल ज़िंदगी है, असल हकीकी ज़िंदगी। मगर तुम तो खौफ के मारे घुटने टेके हुए हो। ये तो हुआ मौत का डर। अब मैंने कहा शहवत से भी तुम्हारा वही डर जुड़ा हुआ है। कैसे? अब समझो कि शहवत को क्यों दबाया जाता है। मामला सीधा है। मौत और शहवत एक ही टहनी के दो सिरे हैं। अगर तुम्हारे हाथ में टहनी का एक सिरा है तो दूसरा सिरा तुम्हें याद आता ही रहेगा। अगर तुम मौत को भूलना चाहते हो तो तुम्हें इस दरवाजे को भी भूलना होगा जहां से तुम आए हो। अगर तुम्हें मौत से बचना है तो पैदाइश के अमल को भी छुपाना पड़ेगा। इसीलिए तुम देखते हो पूरी दुनिया में तमाम किस्म की तहजीबों में शहवत को दबाया जाता है, उसे गुनाह बना दिया गया है, उसे अंधेरे में धकेल दिया गया है। मंतिक साफ है, अगर दूसरे किनारे यानी मौत से बचना है तो पहले किनारे यानी शहवत को भी नजरों से ओझल कर दो। मगर सच दबते नहीं है। तुम जितनी आंखें बंद कर लो उतने मुसीबत में फंसते जाते हो। शुतुरमुर्ग रेत में सर छुपा लेता है, तूफान से बच नहीं जाता। पिछली सदी में एक आदमी पैदा हुआ, सिगमंड फ्राइड। उस शख्स ने इंसानियत की इस गहरे जख्म पर उंगली रखी थी। उसने शहवत को उधेड़ कर रख दिया था। उसने देखा कि पागल खानों में जो लोग बंद हैं उनमें से 90% लोग महज जिनसी घुटन और जिनसी सप्रेशन का शिकार थे। उसने इंसानी नफ्सियात की गहराइयों में झांका और पाया कि इंसान की सारी बीमारियों की जड़ इसी तवानाई का गलत रुख इख्तियार कर लेना है। फ्राइड से दुनिया जितनी नाराज़ हुई शायद ही किसी और से हुई हो। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे छुपाए हुए राज को चौराहे पर ला कर रख दिया। उसने कहा कि बच्चा भी मासूम नहीं है, वो भी जिनसी जबिल्लत लेकर पैदा होता है। तुम कहते हो बच्चा फूल है, मासूम है। फ्राइड ने कहा नहीं, बच्चा भी शहवत से भरा है, क्योंकि वो शहवत से ही पैदा हुआ है। नहर अगर दरिया से निकली है तो वहाँ भी वही पानी होगा, दूध नहीं बह रहा होगा। बच्चा जिस रास्ते से आया है उस रास्ते की मट्टी उसके वजूद में गुंधी हुई है। और जब फ्राइड ने ये पर्दे उठाए तो नाम निहाद मुहज्जब समाज बिलबिला उठा। मगर हकायक झुटला देने से हकीकतें बदल नहीं जाया करती।
इस सूफी कहानी में जो तुमने सुनी, इस खेल के दूसरे सिरे को समझाने की कोशिश की गई है। ये उसी मौत के सिरे से सच को पकड़ने की कोशिश है। हिंदुस्तान में तांत्रिक ट्रेडिशन रही है जो शहवत के रास्ते से अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश थी। दूसरी तरफ सूफी रिवायात हैं जो मौत के रास्ते से हतमी हकीकत तक जाने की बात करती हैं। ये दो ही दरवाजे हैं, पैदाइश या मौत। इन दोनों के दरमियान जो कुछ है वो बस एक ख्वाब है, एक भटकन। सूफी ने कहा, मौत के हवाले से होश रखना, मौत का होश रहना एक ऐसा सहारा है कि अगर तुम इसे थाम लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। सोचो, अगर मैं अभी तुमसे कहूं कि 1 घंटे बाद तुम्हारी मौत यकीनी है, क्या करोगे तुम? क्या तुम उस शख्स से लड़ोगे जिससे भी लड़ रहे हो? क्या तुम उस पैसे के पीछे भागोगे जिसके लिए खून पसीना एक कर रहे हो? क्या तुम अपने ओहदे, अपनी कुर्सी, अपनी इज्जत के लिए फिक्रमंद होगे? नहीं, इसी लम्हे तुम्हारे हाथ से छुरा गिर जाएगा, तुम्हारी मुट्ठी ढीली पड़ जाएगी। तुम अपने दुश्मन के भी गले लग जाओगे और कहोगे, यार माफ कर दे, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं नफरत करूं, मुझे जाने की तैयारी करनी है। मौत का एक लम्हा, एक एहसास तुम्हारी सारी तरजीहात, सारी प्रायोरिटीज को बदल देता है। जो फजूल है वो गिर जाता है, जो रियल है, जो अहम है, सिर्फ वही बचता है। जैसे ही तुम्हें मौत याद आती है, तुम्हारा घर घर नहीं रहता, वो एक वेटिंग रूम बन जाता है। रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में तुम लड़ते नहीं हो कि यहाँ कचरा क्यों पड़ा है, तुम कहते हो हमें क्या, घड़ी भर बाद ट्रेन आएगी और हम चल पड़ेंगे। जिस दिन तुमने जिंदगी को वेटिंग रूम समझा, उसी दिन तुम हकीकी मानों में जिंदगी को जानने वाले सूफी हो जाओगे। मगर जहाज के मुसाफिरों की तरह तुम्हें भी ये बात रास नहीं आएगी, ना भली लगेगी। किसे रास आती है? सब जीने की तमन्ना लेकर निकले थे, ये बदबख्त मरने की बातें कर रहा है। उन्होंने उसे मनहूस समझा और फिर तूफान आ गया। अब देखो इंसान का तजाद, अभी मौत की बात पर नाराज थे और अब जब मौत सामने खड़ी थी तो घुटनों के बल गिरकर जिंदगी की भीख मांग रहे थे। ऐ खुदा हमें बचा ले। तुम्हारी सारी दुआएं दरअसल बचने की दुआएं हैं। तुम बीज हो और दुआ मांग रहे हो, ऐ खुदा हमें बीज ही रखना, मुझे टूटने ना देना। अरे नादान, अगर बीज टूटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, तो दरख्त बनेगा कैसे? तुम्हारा मिटना ही तुम्हारा बनना है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मांगना क्या है। तुम जो मांगते हो वो अगर मिल जाए तो पछताते हो। वो तिब्बत की कहानी याद है? एक शख्स को एक तावीज़ मिला जिससे 3 ख्वाहिशें पूरी होती थी। उसने क्या किया? दोस्त ने मना किया, फिर भी उसने वो तावीज़ ले लिया। पहली ख्वाहिश उसने की, 1 लाख रुपया मिल जाए। ख्वाहिश पूरी हुई। उसी वक्त खबर आई कि बेटा जंग में मारा गया है और हुकूमत ने मुआवजे में 1 लाख रुपया भेजा है। बीवी ने छाती पीट ली, दौलत आ गई मगर बेटा चला गया। दूसरी ख्वाहिश की, बेटा जिंदा हो जाए। कब्र खुल गई, बेटा वापस आ गया, मगर कैसे? एक भूत बनकर। एक सड़ी हुई लाश, एक भूत। दरवाजे पर दस्तक हुई, बाप ने खिड़की से देखा तो रूह कांप गई। वो अपना बेटा नहीं था, वो एक खौफनाक बला थी। अब क्या करे? सिर्फ एक ख्वाहिश बाकी बची थी। बाप ने कांपते हाथों से तीसरी ख्वाहिश की, इस बला से जान छुड़वाओ, इसे वापस भेज दो। और तावीज़ का किस्सा ख़त्म। यही तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम जो मांगते हो वो मिल जाता है तो रोते हो, नहीं मिलता तो रोते हो। अमीर रो रहा है, गरीब रो रहा है, कुंवारा रो रहा है, शादीशुदा रो रहा है, बे औलाद रो रहा है और औलाद वाला रो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम गलत हो। तुम जब तक अंदर से नहीं बदलोगे, तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे लिए अजाब बनती रहेगी। उस तूफान में वो दरवेश खामोश बैठा रहा था, पुरसकून। वो देख रहा था, विटनेस कर रहा था, मुशाहिदा कर रहा था। वो दुआ नहीं मांग रहा था, वो शुक्रिया अदा कर रहा था कि मालिक, तूने मुझे एक ऐसा लम्हा दिया जहां मैं मौत को इतने करीब से देख सकूं। वो जाग रहा था। तुम्हें पता है रिवायती मौलवी और सूफी में क्या फ़र्क होता है? मौलवी मांगता है, सूफी शुक्रिया अदा करता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तूफान थम गया। मुसाफिर ने पूछा, आपने देखा नहीं? बस एक तख्ता था बीच में। दरवेश ने जवाब में कहा, समंदर में तो फिर भी ये एक तख्ता है, ज़मीन पर तो वो भी नहीं होता। इसका मतलब समझा? ज़मीन पर तुम्हारे और मौत के दरमियान क्या है? कुछ भी नहीं। एक सांस अंदर गई, अगर बाहर ना आई तो मौत।
باہر گئی اندر نہ آئی تو موت۔ تمہارا جسم اور موت ایک دوسرے سے ملے کھڑے ہیں، ان میں انچ بھر کا فاصلہ نہیں ہے۔ تمہارا جسم دراصل موت ہی کا نام ہے، یہ مٹ رہا ہے، ہر لمحے مٹ رہا ہے۔ تم اس جسم سے چپکے ہوئے ہو، اس لیے ڈر رہے ہو۔ درویش کہہ رہا ہے ہوش رکھنا۔ جس دن تم نے اپنے اور اپنے جسم کے درمیان فاصلہ دیکھ لیا، جس دن تم یہ جان گئے کہ میں جسم نہیں، میں وہ وٹنس ہوں جو اس جسم کو دیکھ رہا ہے، اسی دن موت تمہارے لیے ایک واقعہ بن جائے گی، کوئی حادثہ نہیں رہے گی۔ پھر موت آئے گی، جسم گرے گا مگر تم کھڑے رہو گے، کیونکہ تم لازوال شعور، امورٹل کانشیسنس ہو۔ تم وہ شعور ہو جسے نہ پانی ڈبوتا ہے، نہ آگ جلاتی ہے، نہ طوفان مٹا پاتا ہے۔ موت کا ہوش ہی تمہیں زندگی کا اصل راز دے سکتا ہے۔ موت سے بھاگو مت، اسے جان لو، کیونکہ جس نے موت کو جان لیا اس نے زندگی کو بھی جان لیا۔